आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। साथ ही इस दौरान पाकिस्तान का साथ देने वाले चीन और तुर्की की जमकर किरकिरी हुई। भारत के मेक इन इंडिया का डंका पूरी दुनिया में अब बज रहा है। 7 मई की सुबह इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उन 21 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जहां पर टेरर कैंप्स चलते थे। पूरी सटीकता से उन्हें तबाह कर दिया गया। इस दौरान लाहौर के पास तैनात चीन के हाईटेक HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स ने महज 23 मिनट में धूल चटा दी। पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम 23 मिनट के लिए फ्रीज हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक और भारतीय लॉइटरिंग म्यूनिशन के जरिए पाकिस्तान का पूरा सिस्टम जाम हो गया। पाकिस्तान चीन के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 और मिसाइल के दम पर भारत को धमका रहा था, लेकिन पाकिस्तान को चाइनीज आइटम में एन वक्त पर धोखा दे दिया। पाकिस्तान ने चीन की गोदी में बैठकर जो सुरक्षा घेरा खड़ा किया था, ऑपरेशन सिंदूर ने उसे उतनी ही बुरी तरह से चकनाचूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की खास बात यही रही कि इसमें भारत ने स्वदेशी ड्रोन्स, गाइडेड हथियार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का भरपूर इस्तेमाल कर इस पूरे मिशन के दौरान इसरो ने 10 सैटेलाइट्स के जरिए 7000 किलोमीटर के एरिया पर निगरानी रखी। साथ ही दुश्मन की रियल टाइम मूवमेंट की जानकारी सेना को देकर ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाया। पसरूर I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, 2 of them. This is a strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिका के पेंटागन के पूर्व अधिकारी और अमेरिकन एंटरप्राइजेज के सीनियर फेलो माइकल रूबिन ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी एक्सपर्ट का कहना है कि भारत ने जो किया वो बहुत जरूरी था और इस संघर्ष में भारत की सैनिक और कूटनीतिक दोनों तरह की जीत हुई। माइकल रूबिन के मुताबिक भारत के हमलों में सदमे में आया पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाता रहा। पाकिस्तानी आर्मी पर तीखा वार करते हुए अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा कि वो खुद जीत का भ्रम रखते हैं और अपनी आवाम को गलत खबरें देते हैं। Look, this wasn't a conflict which India wanted. This was a conflict that was foisted upon India. Every country has the right to defend its citizenry. It doesn't differentiate between whether a formal army attacks the country or whether a terrorist army attacks the country. But ultimately, it's the job of India to draw a red line and say, no, we will never tolerate terrorist attacks coming across our border. So India did what was absolutely necessary. Well, India won this, both diplomatically and militarily. The reason why India won diplomatically is all attention is now on Pakistan's terror sponsorship. The fact that Pakistani officers in uniform attended the funeral of terrorists shows that there is no differentiation between a terrorist and a member of the ISI or the Pakistani armed forces. Basically, the world is going to demand that Pakistan extract the rot from its own system. So diplomatically, India changed the conversation. Militarily, Pakistan is shocked. Look, I'm a historian by training, and that means I get paid to predict the past.
And one thing that we can say with certainty is that Pakistan has started every single war with India and yet convinced itself that somehow it has won. It's going to be very difficult for Pakistanis to convince themselves that they won this 4-day war. The reason is India was able to, with precision, decimate the terror headquarters and training camps. When Pakistan responded, India was able to blunt their response. And then when Pakistan continued to try to retaliate, India was able to put their airfields out of commission. Pakistan went running to try to achieve a ceasefire like a scared dog with its tail between its legs. And the fact of the matter is, there is absolutely no spin that the Pakistani military can put on what occurred to shield themselves from the full reality of the fact that they not only lost, but they lost very, very badly. यूएस एक्सपर्ट को आपने सुना। पाकिस्तान सिर्फ हारा नहीं, बहुत बुरी तरह से हारा है और पाकिस्तान इस बात को कभी मानेगा नहीं। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को न केवल करारा झटका लगा, बल्कि अब उसे पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। भारत ने जम्मू कश्मीर में बगलिहार डैम के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ जाने वाली चिनाब नदी सूख गई है। रामबंद जिले में चिनाब नदी पर बगलिहार जल विद्युत परियोजना पर बने बैराज के सभी गेट बुधवार को दूसरे दिन भी बंद रहे। इसी तरह रियासी जिले की बात करें तो यहां पर भी लगातार सलाल बांध के 6 में से केवल 1 गेट को खोला रखा, जिससे पाकिस्तान की तरफ बहने वाली नदी में पानी का बहाव बाधा हो गया है। पानी बंद होने की वजह से बौखलाए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी है। शहबाज शरीफ ने कहा, पानी बंद करने को रेड लाइन करार देते हुए आगे खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। मेरी नजर में उसको आप किसी और तरीके पे से ले सकते हैं, ऑल्दो इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, लेकिन 1971 की जंग में हिंदुस्तान से आपने इस जंग में बदला ले लिया। ये सुनने मेरी बात कान खोल के कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा।